برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، خدائے قدیر و جبار ارشاد فرماتا ہے، کیا تم سب نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار میں پیدا کیا گیا ہے؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ کبھی ہم لوٹائیں گے نہیں تمہیں؟ یہ دونوں خیالات تمہارے غلط ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنی کائنات میں ایک ذرہ بھی بیکار نہیں پیدا کیا، اس نے ایک مچھر کو بھی عبث نہیں پیدا کیا، اور دنیا میں جس کو بھی بھیجا ہے ایک معین مدت کے لیے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، اور پھر ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری زبانوں سے بے اختیار نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ عزیزان گرامی، جس نے اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے یہاں پر زندہ رہنے کا مقصد نہیں سمجھا، وہ سب سے بڑے دھوکے میں رہا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں نے میرے ساتھ چیٹ کیا، بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دھوکہ تم خود اپنے آپ کو دیتے ہو۔ دوسروں کا جو کھایا ہوا دھوکہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن تم جو خود دھوکے میں مبتلا ہو اپنے آپ کو، یہ برسوں بیت جاتے ہیں، تم نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نہیں نکالا۔ کبھی اپنے جسم کی طرف دیکھو، یہ قیمتی جسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں کر عطا کیا ہے؟ یہ ہاتھ و پیر کی نعمتیں، یہ آنکھ و زبان کی نعمتیں، یہ قوت سماعت، قوت بصارت، یہ تمام قوتیں جو اللہ نے تمہیں بنا کسی معاوضے کے دیا ہے، کیا یوں ہی دے دی گئی ہیں تمہیں؟ ان کا کوئی استعمال؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے، بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز نہ کرے تو گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باہر نکل آؤ۔ میں آج یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے، کسی دن آ کر پوچھ لیتے کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں یہاں کیوں زندہ ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں۔ ایٹم پر تحقیق کیا، ذرے پر تحقیق کیا، زمینوں پر تحقیق کیا، آسمانوں پر تحقیق کیا، انسان نے کن چیزوں پر تحقیق نہیں کیا ہے؟ اور جس مادے پر انسان تحقیق کرتا ہے وہ اتنا بلندی پر جاتا ہے کہ دنیا اسے سائنسدان کہتی ہے، سائنٹسٹ کہتی ہے۔ اور اسلام سب سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ پر تحقیق کرنا سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود اپنے متعلق سب سے پہلے معلومات حاصل کر لے کہ میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، مجھے اگر بڑھاپا دیا گیا تو کیوں ہے، میری سانسوں کا کیا حساب کتاب ہے،
मैं इस दुनिया में सारी सहूलतें खा पी करके इस्तेमाल करके क्यों रह रहा हूं? कोई तो मकसद होगा। मिसाल के तौर पर आपको अचानक किसी ने 5 स्टार होटल में बुलाया, वहां पर तरह तरह के खाने लगे हुए थे, बेहतरीन रूम हैं, आप गए और वहां के खाने भी इस्तेमाल करते रहे, वहां के रूम्स भी इस्तेमाल किए, वहां का पानी इस्तेमाल किया, जो जो सहूलियात थी वहां पर सब आपने इस्तेमाल किया। लेकिन क्या यह आपका फर्ज नहीं बनता कि आपको दावत किस काम के लिए दी गई थी? वहां पे उस 5 स्टार होटल में कोई पार्टी थी, किसी की शादी, किसी का वलीमा, किसी का अकीका, क्या था? क्यों बुलाया गया था आपको? क्यों बुलाया गया? एक बड़े फंक्शन हॉल में आपको क्यों बुलाया जाता है? आपको तो यह मालूम ही होता है, मुझे फलां की शादी में बुलाया गया, वलीमे में बुलाया गया, अकीके में बुलाया गया, मंगनी में बुलाया गया। आपको मालूम होता है क्यों बुलाया गया है। बगैर आपको मालूम हुए आप वहां जा करके मौज मस्ती करते रहे तो आपको पागल कहा जाएगा। इसे पता ही नहीं है यहां हो क्या रहा है, सिर्फ अय्याशी करने के लिए आ गए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तुम्हारे इस कायनात में जलवागर होने से पहले अल्लाह ताला ने क्या चीजें तुम्हारे लिए नहीं सजाई। ये जमीन का मजबूत बिछौना, आसमान का मजबूत छत बगैर पिल्लर का, ये कायनात में सरसराती हुई हवाएं और तुम्हारे लिए मुफ्त सांसें, तुम्हारे लिए पानी की फरावानी, रोशनी का इंतजाम, सोने के लिए अलग तुम्हें नींद के गलबे, भूख लगे तो खाने की तमाम चीजें, ये सब चीजें मुहैया कर दी गई। तो तुम आए क्यों यहां पर? इस कायनात में क्यों आए? क्या मतलब था, क्या मकसद था? इसी मकसद तखलीक को कुरान कहता है सूरह ज़ारियात की आयत, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाता है हमने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है। समझ में आया कि हमें कायनात में अल्लाह ने अगर भेजा है तो उसकी इबादत के लिए भेजा है। अजीजा ने गिरामी, इसी बात को मैंने इससे कबल भी दोहराया था कि इंसान बाकी सारी चीजें कर लिया लेकिन जिस का मकसद के लिए वह आया था उसी में वह अधूरा रह गया। यानी इबादत, अल्लाह की रजा हासिल करना, यह सबका मकसद था, इसीलिए तुम्हें बनाया गया था। और आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये लाइफ बेकार की चल रही है और उसको इस तरह से गुजार रहे हैं जैसे लगता है कि कोई हल्की फुल्की चीज तुम्हारे हाथ में आई है। इतनी कीमती जिंदगी अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है कि अगर सांस तुम्हारी रुक जाए तो करोड़ों दे करके भी किसी डॉक्टर से सांसें वापस नहीं ला सकते। एक बार तुम्हारी धड़कन रुक जाए तो लाखों करोड़ों अरबों दे करके भी उस धड़कन को वापस नहीं ला सकते। इतनी कीमती लाइफ तुम्हारे हाथों में आज मौजूद है, लेकिन उसका मकसद ना समझ करके अपने आप को अय्याशियों में और बेकार जिंदगी में गुजारना, गोया कि इंसान का खुद अपने आप को धोखा देना है। मुझे बताओ कितने लोगों ने अपने आप को धोखा दिया? ये तो जुर्म है धोखा देना दूसरों को, लेकिन मैं समझता हूं उससे बड़ा जुर्म अपने आप को धोखा देना कि तुम पैदा किस काम के लिए किए गए थे और कर क्या रहे हो आज। मुझे बताओ ऐ बच्चों, जवानों, क्या तुम्हारी रातें इसीलिए बनाई गई हैं कि तुम रात भर बैठकर गेम खेलो? क्या तुम्हारी रातें इसीलिए हैं कि तुम किसी भी नुक्कड़ पर बैठ करके गप्पे लगाओ? क्या तुम्हारी रातें इसीलिए है कि लोगों के ऐब जोई करो? क्या तुम्हारे दिन इसीलिए हैं कि तुम अपने तबीयत और अपनी ख्वाहिशात के लिए डांस बार, कभी क्लब, कभी फलां जगह, नशे के अड्डे, ताश के पत्ते, शराब की बू, ये तमाम चीजें जिंदगियों में ऐसी लाई गई? क्या आपने कभी ये सोचा कि इसीलिए मैं दुनिया में आया हूं? नहीं मेरे अजीजों, किसी और ने नहीं, तुम्हें इस रास्ते पर तुम्हारे नफ्स ने धोखा दिया है। अपने आप को धोखा दे करके सिराते मुस्तकीम से हटा दिया है। अबस नहीं पैदा किए गए, बेकार नहीं पैदा किए गए। मैं तारीख की चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं जिन्होंने दुनिया में एक ऐसी तारीख रकम की है कि उनकी जिंदगी का एक लम्हा भी जाया नहीं किया उन्होंने। एक दिन तो दूर की बात, एक लम्हा जाया नहीं करते थे। इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला
कौन नहीं जानता इस इमामुल मुहद्दिसीन को। कुरान पाक के बाद सबसे अफजल किताब इस रुए जमीन पर वो बुखारी शरीफ है, सही बुखारी। आप पढ़ने के लिए जब बैठते थे या अहादीस का मुताला करते तो रात पूरी गुजर जाती, थोड़ी देर आप आराम करते, उसके बाद जब मुताले के लिए बैठते तो फजर की अजान होने के करीब आ जाती और वह अहादीस पलटते रहते हैं और उसमें गौर व फिक्र करते रहते। पहले ऐसा होता कि सुबह सादिक जब हो जाए तो मुर्गे बांग देते। बांग देना समझते होंगे, मुर्गा पुकारता है। अब मुर्गों के पालने का भी सिस्टम खत्म हो गया है, सब देसी मुर्गों की जगह ब्रॉयलर चिकन ने ले लिया है। ये सारे तो जंगली कहलाने लग गए अब, हालांकि उसकी फजीलत आई है ये देसी मुर्गे की, उसको मारने से भी मना किया गया। कहा गया कि इसको अजियत ना दो, इसलिए कि लोगों को सुबह की अजान के तौर पर जगाता है। तो पहले यही होता था कि बराबर वक्त पर सुबह सादिक पर मुर्गा बांग देता और लोग यही समझते कि अब फजर का वक्त हो चुका है। वो बराबर फजर के वक्त पुकारता और उस मुर्गे पर लानत भेजी गई है जो आधी रात में पुकारता है। कहा गया वो शर है, वो शैतानी है। खैर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ लिख रहे थे या पढ़ रहे थे, मुर्गे ने बांग दी। तो जैसे ही मुर्गा बांग देता आप अपनी किताब बंद कर देते और मस्जिद की तरफ चले जाते। नमाज का वक्त हो चुका होता जब आप फजर की अदायगी के लिए आते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रात मुर्गे की आवाज सुनी, अपना मुताला बंद किया, अपनी किताब बंद की और निकल पड़े। मस्जिद आए तो पता चला अभी फजर का वक्त होने में काफी टाइम बाकी है। काफी टाइम का मतलब आधा घंटा, आधा से पौना घंटा होगा, इतना वक्त बाकी था अभी तुलुए सुबह सादिक के लिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जलाल आ गया। हालांकि अगर कोई वक्त से पहले मस्जिद में आ जाए तो सवाब ही है, क्या खराबी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस कदर जलाल में आए कि आकर के आपने एक जुमला कहा कि अल्लाह इस मुर्गे को कत्ल कर दे। कातल अल्लाह हादा दीक, अल्लाह इस मुर्गे को कत्ल कर दे जिसने मेरे मुताले के वक्त को बर्बाद किया। जो मेरी पढ़ाई का वक्त था इसने उसमें से, इसकी आवाज की वजह से मैं उठ गया, मेरा इतना वक्त इसने खराब किया। मुर्गा फजर की अजान से पहले खत्म हो चुका था, मर चुका था। आपकी वालिदा माजिदा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा माजिदा ने आपको नसीहत फरमाई और इरशाद फरमाया कि बेटा इसके बाद कभी किसी के लिए इस तरह का जुमला ना कहना, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारी जुबान में असर रखा है। बताना मकसूद ये है मेरे अजीजों कि उनका कितना वक्त गया होगा, आधा से पौना घंटा, जिसके लिए वो इतने जलाल में आए कि उस मुर्गे को फिर कभी दोबारा पसंद नहीं फरमाया और वो खत्म भी हो गया। यहां तो पूरी की पूरी रातें जाया हो गई, बरस के बरस जाया किए, महीनों जाया किए और कभी उफ तक नहीं। मेरे अजीजों, तुम्हारे पास जो वक्त है ये बहुत ही कीमती वक्त है अल्लाह को मनाने के लिए और उसको राजी करने के लिए। मैं एक हदीस पाक आपको सुनाकर मकसद जिंदगी आपको बताना चाहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअलु अन खमसिन। कयामत के दिन इब्ने आदम यानी हर इंसान, कोई इंसान के दोनों कदम हट नहीं सकेंगे अपनी जगह से। जो महशर का मैदान होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम, पूरे इंसानों में से किसी इंसान के दोनों कदम हटेंगे नहीं उस वक्त तक, हत्ता युसअलु अन खमसिन, जब तक कि उससे 5 चीजों का सवाल ना हो जाए, जब तक कि उससे 5 चीजों के बारे में पूछ ना लिया जाए। वो 5 चीजें क्या हैं? ये तिर्मिज़ी शरीफ की सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन उम्रिही फीमा अफनाहु,
सबसे पहला सवाल ये होगा कि अल्लाह ने जो तुझे पूरी उम्र दी, तूने कहां कहां गुजारी, पूरा हिसाब दे दे। वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, दूसरा सवाल, हालांकि उम्र में ये सारी चीजें आ गई थी, लेकिन फिर खास एक सवाल ये करेगा रब ताला, फी अन शबाबिही, तेरी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। हर एक की जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि तूने ये कहां कहां गुजारी। और तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, और उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि कहां से हासिल किया था। वफीमा अनफकहु, और कहां खर्च किया, ये चौथा। और वफीमा, और सवाल होगा वफीमा आमिल मिन अलिमा और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना उसने इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया था। ये 5 सवालात जब तक ना किए जाएं, हर इंसान से कोई वहां से हटेगा नहीं। सबसे पहला सवाल उम्र के मुतालिक ही है। क्या हमारे पास इन 5 सवालात के जवाब तैयार हैं? नौजवानों, तुम बताओ कि जवानी के मुतालिक जब सवाल होगा तो बुजुर्गान दीन जो इसकी तशरीह फरमाते हैं, दूसरे सवाल पर इंसानियत अटक कर रह जाएगी, यहां तक कि ये दूसरा सवाल है ना, वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, और जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि कहां कहां गुजारा, बता दे। अब बताने के लिए जब शुरू करता है जवान कि मेरी जवानी शुरू हुई थी 15 साल से, और जब बताना शुरू करता है, बुजुर्गों ने तशरीह में लिखा किसी की जवानी का हिसाब दे देते 200 साल लग जाएंगे, लेकिन उसका हिसाब खत्म नहीं हो रहा होगा। 200 साल का अरसा गुजर चुका होगा। बाज उसी सवाल में अटक करके 300 साल 400 साल खड़े हो चुके होंगे, और किसी घबराहट की जरूरत, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। 50,000 साल के बराबर का एक दिन है, तुम्हें तो हिसाब देना है। कोई इतने इतने सालों तक खड़े रहेंगे सिर्फ दूसरे सवाल के जवाब में। एक उम्र कहां गुजारा, दूसरे उसने अपना शबाब, अपनी जवानी कहां बिताई। लिख करके रख लो कि अपनी जवानी के मुतालिक क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये कहोगे कि मैंने तो अपनी जवानी की हर रात गेम खेलने में गुजारी, जवानी की हर रात चैटिंग में गुजारी, जवानी की हर रात लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते और उनके ऐबों को देखने में गुजारी। इंसान की ये फितरत है कि वो हमेशा बुराई देखना पसंद करता है। इस फितरत से बाज आना चाहिए। ऐ अजीजो, वक्त की कीमत समझो। और नौजवानों से मैं कहूंगा, अब तुम्हारे लिए हालात इस कदर तेजी से बदले जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास अभी 5 से 10 साल के अरसे में इतनी जबरदस्त चेंजिंग देखने को मिलेगी जो पिछले 100 सालों में आपने नहीं देखा होगा। बहुत तेजी से तब्दीलियां आएंगी। इमाम हम्माद इब्न नईम रदी अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाते हैं, जो आखिरी जमाने के हालात के मुतालिक अहादीस आई हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन हदीसों में से एक हदीस आप बयान करते हैं, क़यामत के करीब तुम देखोगे जमाना इतनी तेजी से दौड़ेगा कि जो 100 साल में हुआ था वो सिर्फ 20 साल के अंदर होगा, और फिर 20 साल के अंदर जो हुआ था वो 10 सालों के अंदर होगा। वो आज हमने महसूस किया है, पिछले 20 साल के अंदर इस कदर दुनिया में तब्दीली आ गई है जो पिछले 100 सालों में उनके ख्वाब भी नहीं देखे गए थे। इंटरनेट की दुनिया ने कहां से कहां पहुंचाया है। अब अगले जो 10 साल होंगे ये पिछले 20 सालों से भी ज्यादा तेज होंगे। हम अभी से सुन रहे हैं कि 5G का आना मुतवक्को है, और उसके बाद दुनिया में जबरदस्त तब्दीलियां आएंगी। हो सकता है कि तुम्हारी नेचुरल कुदरती चीजों पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो, बहुत बड़ा असर हो। तुम्हारे खान पान में तब्दीली आ जाएगी, रहन सहन में तब्दीलियां आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी आज प्लानिंग हो रही हैं कि माइंड कंट्रोलिंग के मुतालिक लोग प्लान बना रहे हैं। ये माइंड कंट्रोलिंग क्या है? किसी के जहन और दिमाग को ऐसा अपने काबू में रखना कि मैं उठ कहूं तो उठे, बैठ कहूं तो बैठे, चल कहूं तो चले। ये ऑर्डर देने वाले जो सिस्टम है माइंड कंट्रोलिंग कहते हैं। इस पर पूरी दुनिया आज, पूरी दुनिया नहीं, यहूदी लॉबी सबसे ज्यादा इसमें मसरूफ अमल है।
चंद दिनों पहले अभी एक यहूदी आलिम ने बाज़ाब्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो करवा करके ऐलान किया है कि हमारे अगले 5 सालों में प्लान क्या है, हम पूरी दुनिया को क्या करने जा रहे हैं। अगरचे उसका ऐलान हो, हम तो जानते हैं अल्लाह जो चाहता है वही होता है मेरे अजीजों, लेकिन दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोग और पूरी इंसानियत के कातिल ये यहूदी लॉबी जो प्लान बना रहे हैं, क्या हम उसके मुतालिक तैयार हैं? यहां तो जवानों को देख करके अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फजूल नहीं पैदा किया, अबस नहीं पैदा किया। आज हमारी जवानी को देखकर कोई मदद के लिए भी पुकारना नहीं चाहता हमें। ये खुद अपने आप को धोखा दिया हुआ आदमी है, दूसरों की क्या मदद कर सकेगा। मुझे भी चंद दिनों पहले एक बात पढ़ने को मिली, कश्मीर की खवातीन बिलखती हैं, आज रोती हैं, बहुत सारी उनकी परेशानियां हैं। लेकिन एक जमाना था जब इसी सिंध के इलाके से चंद औरतों ने अरब के नौजवानों को पुकारा था। राजा दाबेर सिंह, ये मैं 90 हिजरी की बात कर रहा हूं, आज से 1300 साल पहले तकरीबन राजा दाबेर सिंह की हुकूमत थी। जब कुछ हज पर जाने वाली खवातीन श्रीलंका से निकली, बीच रास्ते में गुंडों ने उन्हें अगवा कर लिया और उनकी इज्जतों से खेलने लगे, तो उन औरतों ने जो हज के लिए निकली थी आवाज दी कि कोई अरब का काफिला हो तो हमारी आवाज खलीफा वक्त तक पहुंचा दे। तो उस वक्त जो ताजिर आए थे, उन ताजिरों ने ये बात सुनी कि कुछ मुसलमान औरतें इस तरह अगवा की जा चुकी हैं, गिरफ्तार हैं। तो वो बात जा करके उस जमाने के हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर के सामने बयान की गई। वो खुद एक जालिम था, लेकिन दरबार में एक नौजवान गुजर रहा था जो उसका भतीजा भी, मोहम्मद बिन कासिम, रुक गया, पूछा कि कहां से खबर लाए हो? कहा सिंध से। ये हिंद और सिंध 2 खित्ते थे हमारे, जो आज कट करके कुछ पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिंदुस्तान में। सिंध से हम ये खबर ले आए हैं, वहां कुछ औरतों के साथ जुल्म बर्बरियत का खेल खेला जा रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरब की उस सरजमीन से आवाज लगाई थी, लब्बैक या उख्ता, ऐ मेरी बहन मैं हाजिर हो रहा हूं, मैं आ रहा हूं। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने वक्त के गवर्नर से इजाजत ली और 10,000 नौजवानों का लश्कर लेकर वो सिंध पर हमलावर हुआ। ये सबसे पहला लश्कर था जो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और राजा दाबेर सिंह के साथ मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई। जब हल ना हो सका, वो औरतों को आजाद करने पर आमादा नहीं हुए, तो सिर्फ और सिर्फ इज्जत औरतों की महफूज रखने की खातिर इन नौजवानों ने उनके साथ ऐसा हमला किया कि ये पूरे के पूरे फौज तितर बितर हो गई और गुंडे पकड़े गए, हत्ता कि राजा दाबेर सिंह भी गिरफ्तार हुआ। उन खवातीन को आजाद कराया गया। पहली मर्तबा मोहम्मद बिन कासिम ने परचम इस्लाम हिंद में लहराया। यह वो जमाना था जब हिंदुस्तान में अलल ऐलान किसी ने परचम नहीं लहराया, पहला लश्कर। लेकिन मुझे यह बात इसलिए बतानी पड़ रही है कि जो मोहम्मद बिन कासिम अरब से चल करके चंद खवातीन की इज्जत बचाने के लिए आया था, वो कोई 40 साल 50 साल तजुर्बाकार सिपह सालार नहीं था, वो जर्नल और कमांडर नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 19 साल का जवान था। सिर्फ 19 साल का जवान था। 10,000 के लश्कर को लेकर आया और खवातीन की इज्जत बचाने के लिए 19 साल के जवान तो आज औरतों पर झपटा मारने के प्लान बना रहे हैं, इज्जतों पर डाका डालने की सोच रहे हैं। 19 साल की जवानी लोग ये सोचते हैं सिर्फ हमें चैटिंग के लिए, औरतों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए, उनसे हमारे रात के मुकालमे के लिए। मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। याद रखो तुम्हारा जो ये शबाब, तुम्हारी ये जवानी जिन लम्हों में गुजर रही है, तुम क्या सोचते हो घर के पर्दे बंद करके मैं चैटिंग करता हूं? तुम्हारा अकीदा क्या है? कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, तुम्हारी आंखें जो खयानत कर रही वो भी देख रहा है, और तुम्हारे दिलों में जो हालात गुजर रहे हैं उसको भी वो देख रहा है। तुम्हारी उंगलियों की हर हरकत पर अल्लाह की नजर है। जब तुम उठाए जाओगे तो इन तमाम चीजों के साथ उठाए जाओगे। अजीजा ने गिरामी, मैं तो चंद मिसालें पेश करना चाह रहा था कि जिन्होंने अपना मकसद जिंदगी समझा, बरसों हो गए आज हमारे मुआशरे में वो बच्चे ही नहीं पैदा हुए।
जिन्हें आज अपना मकसद जिंदगी समझ में आए और मुख्तसर सी जिंदगी में इस कायनात में कुछ करके चले जाएं, दुनिया को कोई तोहफा दे करके जाएं। आपको मालूम है आज दुनिया जिन जदीद चीजों का लाभ उठा रही है, ये जितनी टेक्नोलॉजी है, मैं चैलेंज करता हूं इनकी जड़ तक जाओगे तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो हदिया किया गया है पूरी दुनिया को, आज इसमें सबसे बड़ा किरदार मुसलमान उलमाए कामिलीन का है। सब मुस्लिम उलमा है, सब मुस्लिम उलमा है। 100 से ज्यादा मुस्लिम साइंटिस्ट मैं आपके सामने पेश करूंगा जो कायनात में सबसे पहले इजाद करने वाले मौजूद हैं बहुत सारी चीजों के, और आज चुरा करके किसी और के नाम पर ये तख्तियां लगाई गई। आपको क्या खबर, आज पूरी दुनिया मुवासलात के तौर पर यानी सफर के लिए इतना तेज हो चुकी, एरोप्लेन बन गए, हजारों लोग उसमें सफर करने लगे। और इस एरोप्लेन की इजाद के मुतालिक 15वीं सदी के बाद के चंद अंग्रेजों के नाम बताए जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, सबसे पहले इसका तजुर्बा करने वाले हुसैन बिन अब्बास फरनास, अब्बास बिन हुसैन फरनास, ये करतबा में रहने वाला एक ऐसा साइंसदान, कब की बात कर रहा हूं, आज से 1000 साल पहले की बात, आज ये 2020 चल रहा है, वो 1021 1022 का साइंसदान है। जब करतबा की जामा मस्जिद के मीनार से पर लगाकर उकाब के उसने खुद उड़ने की कोशिश की, और पहला वो इंसान है जो हवा में उड़ने का एक तजुर्बा दूर लोगों के सामने पेश किया। ऐसे नहीं कि मीनार से छलांग लगाया, बल्कि तारीख में आज भी रकम है, अब्बास फरनास 10 मिनट तक हवा में उड़ता रहा। इसने नई इजाद की और उसके 500 साल बाद आकर इस फार्मूले पर तहकीक की गई और उसके बाद एरोप्लेन बनाया गया। दुनिया को हवाओं में उड़ने का अंदाज भी एक आलिम दीन ने दिया था, एक नौजवान साइंसदान ने दिया था। इब्नुल हैसम का नाम सुना होगा आपने, सबसे पहले बसरियात के इल्म पर किताबें लिखने वाला वो साइंसदान जिसने आंखों के मुतालिक तमाम तफसीलात दर्ज की, बल्कि दुनिया में सबसे पहले कैमरे का तस्वुर देने वाला इब्नुल हैसम है कि रोशनी जितने बारीक हिस्से से अंधेरे कमरे में जाएगी, एक कमरे से कैमरा बनाया गया। इब्नुल हैसम कौन है? एक मुस्लिम साइंसदान। इतना ही नहीं, अबू बकर राजी, ये वो तबीब है जो पूरी दुनिया का फाउंडर है। इल्मे तिब में, मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाला मुस्लिम आलिम दीन अबू बकर जकरिया राजी, जिन्होंने आज से कई 100 साल पहले लोगों को तस्वुर दिया इल्मे तिब का। सर्जरी के मामलात पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं थे। सबसे पहले अबू बकर राजी ने सर्जरी के तरीके बताए, हॉस्पिटल का निजाम बताया कि हॉस्पिटल कहां बनाया जाए। बगदाद में उन्होंने खलीफा से कहा कि गोश्त के टुकड़े काट करके हर मोहल्ले पर लटकाए जाएं, एक एक लकड़ी में लटकाए गए 10-12 मोहल्लों में, और 3 दिन के बाद वो निकालने लगवाए। इमाम राजी ने देखा कि जो गोश्त का टुकड़ा सबसे लेट खराब हुआ या सूखा, बहुत सारे तो सड़ गए, सूख गए, जो बहुत देर तक सही सलामत था, अबू बकर राजी ने कहा यहां हॉस्पिटल बनाया जाए। कहा क्यों? कहा यहां की आबो हवा जिस्म को जल्दी खराब नहीं होने देती, मरीज को ऐसी जगह रखा जाए जहां की आबो हवा उसके जिस्म को सलामत रखे। यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अबू बकर राजी ने, जब उनकी उम्र 33 साल की थी। 33 साल की उम्र में बड़े से बड़ी दुनिया को इन्होंने फार्मूले पेश किए। एक दो नहीं मेरे अजीजों, इब्न साआती, लक़ब साआती खुरासानी, एक मशहूर साइंसदान, मिस्र के रहने वाले, और आज से तकरीबन 1200 साल पहले की बात बता रहा हूं, खलीफा हारून रशीद के जमाने, तब इस साइंसदान ने हाथ की घड़ी इजाद की और पूरा प्लैनेट सिस्टम देखने का तरीका इजाद किया। सैयारे गर्दिश कहां करते हैं, ग्रेविटी सिस्टम जो बाद में न्यूटन के लिए पेश किया गया, ये सबसे पहले मुस्लिम आलिम दीन ने पेश किया, कशिश सिकल जिसको कहते हैं। और सबसे पहले अबू बकर राजी ही हैं जिन्होंने केमिकल की दुनिया में
सबसे पहले एसिड तैयार किए, सल्फ्यूरिक एसिड, जो आज कीमिया में बुनियाद की हैसियत रखता है। ये तमाम चीजें दुनिया को देने वाले वो मुस्लिम साइंसदान थे। मेरे अजीजों, में इनकी मिसालें सिर्फ इसलिए पेश कर रहा हूं कि दुनिया में ये तरक्कियात और दुनिया में जीने के सलीके इस्लाम ने और मुसलमानों ने दिए, आज पूरा का पूरा पलट दिया गया और तुम्हें इतना पीछे धकेल दिया गया कि आज दुनिया तुम्हें तहजीब सिखाने आ रही है। आज तुम्हें मैनेजमेंट डेवलप करने के लिए तरीके सिखाए जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि गुलामी के अंदाज में तुम सीखने के लिए गैरों के दरबार में जा रहे हो। ऐ मेरे अजीजों, आज सबसे बड़ा जो हमारे पास नुकसान हुआ है वो हमारे बच्चों को हमारा माजी ना पढ़ाना, हमारी तारीख ना पढ़ाना। चंद साल और तुम इस तरह आंख बंद करके बैठे रहो, तब उसके बाद बच्चों का हाल ये होगा। ये मुस्लिम साइंसदान तो भुला ही दिए गए हैं, ये तो कहां मालूम है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम, ये तो भुला ही दिए गए हैं। औलिया इकराम भी भुला दिए जाएंगे, तारीख खत्म की जाएगी और चंद दिनों के बाद मैं बारहा ये कहता हूं, शायद बच्चे बाद में ये भी पूछेंगे मोहम्मद किसका नाम था। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जब इस तरह हम तारीख से अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं और सारा का सारा हमारा वक्त इसी मोबाइल इंटरनेट पर गुजरे, जो फजूल और फहश चीजों को देखने में, ऐ मेरे अजीज बच्चों, आज अपनी जिंदगी की कदर और कीमत समझो और बाज आ जाओ। तुमसे सवाल होगा तुम्हारी जवानी के मुतालिक। तुम यहां पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए हो, उसी चीज में अभी खरे नहीं उतर सके, इसी में बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। इसीलिए शायर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये एक इस्तिगासा के तौर पर यूं कहा था, ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। जो पूरी दुनिया को क़ियादत सिखाने के लिए निकला था इस्लाम, वो आज अपने ही देश में गरीबुल गुरबा है। आज जितने मुस्लिम ममालिक हैं वहां की भी हालात यही हैं कि उनके यहां गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, न जाने क्या क्या मादनियात हैं, लेकिन निकालने वाले यूरोपियन हैं, अमेरिकी हैं। इन पर इजारादारी पूरी बाहर की कंपनियों की है। क्या हम इस कदर आज इल्म से और अपने मकसद जिंदगी से बिछाड़ दिए गए? ऐ मेरे अजीजों, मैं पढ़ रहा था यहूदियों के मुतालिक, बरसों गुजर गए, 1400 साल हो गए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को। बाज़ उलमा भी इसको रिजेक्ट करते हुए आज अलग अंदाज से बोलने की कोशिश करते हैं। हुजूर ने फरमाया था, अपने बच्चों को निशानाबाजी सिखाओ, तीर अंदाजी सिखाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस में इन्हें घुड़सवारी सिखाओ, तीर अंदाजी सिखाओ। और एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ये तीन चीजें सिखाने के लिए फरमाया गया। आपके बाद जब ये बात कही जाए तो घोड़ों का जमाना नहीं है, मर्सिडीज कार का जमाना है। आप तीर अंदाजी का जमाना नहीं, अब तो बम बारूद पेट्रोल मिसाइल का जमाना है। ठीक है, जदीद दुनिया में तुम ये जवाब तो दे सकते हो, लेकिन आज ही की बात मैं बताऊं, इजराइल में आज भी यहूदियों को देखा गया, वहां पर 6 साल के बच्चे को कंपलसरी निशानाबाजी सिखाई जाती, जबकि उनको मालूम है यह जमाना तीर अंदाजी का नहीं, लेकिन निशानाबाजी क्यों सिखाई जा रही है? घुड़सवारी आज भी सिखाई जा रही है इजराइल में, आज भी। क्या उन्हें नहीं मालूम? वही कारों की इजाद करने वाले लोग हैं बहुत सारे। अजीजा ने गिरामी वकार, मैंने ये महसूस किया, दुनिया की दूसरी कौमें मेरे नबी के फरमान के मकासिद समझ गई और वो हल करने पर अपने बच्चों को आमादा कर लिया, और हम तरक्कियात के नाम पर अपने ही नबी के फरामीन को पीछे छोड़ते चले गए। मैंने शायद इससे कबल भी आपसे कहा था, एक औरत जब हामला हो जाए इजराइल में तो 9 महीने उसकी निगरानी के लिए बजट पास होता है। हामिला औरतों के लिए बजट पास किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। 9 महीने वो कैसे गुजारेगी? उसे मैथमेटिक्स के टफ फंडे दिए जाते हैं हल करने के लिए कि औरत इनमें अपना वक्त सर्फ करे, उसके पेट में पलने वाला बच्चा ज़हीन पैदा होगा। औरत को हिसाब में पूरा दिन गुजारने के लिए कहा जाता है, बहुत सारी चीजें। और जब पैदा होता है बच्चा, उस वक्त से उसकी प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग होती है। हर यहूदी बच्चा बिजनेसमैन बने, हर यहूदी बच्चा टॉप इंजीनियर बने।
ये तमाम चीजें उन्होंने अपने बच्चों के साथ किया, इसीलिए मुट्ठी भर होकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब सोचते। अजीजा ने गिरामी वकार, आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रह गया कि इन बच्चों को जो तुमने आवारा छोड़ दिया है, बेकार और अबस छोड़ दिया, या फिर जो नौजवानों ने अपने आप को समझ लिया कि हम बेकार हैं, अबस हैं, वो वापस आ जाएं। अल्लाह ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया, फजूल नहीं बनाया। तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है मेरे अजीज, तुम्हारी जवानी सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए नहीं है। वो अपने बच्चों को असली गेम खिला रहे हैं, मिसाइल पकड़ा करके, बंदूक पकड़ा करके, तीर पकड़ा करके, और तुम्हें मोबाइल में मसरूफ करके रख दिया। तुम पबजी में रहो और हम हकीकी मैदान में रहेंगे। तुम इसी में लड़ते रहो और वो अपने बच्चों को हकीकी मैदान में ले आएंगे। आज मैंने ये देखा कि चंद दिनों पहले एक भड़काऊ भाषण करने, वैसे तो हमें ये कहते हैं हिंदुओं में, एक स्वामी कह रहा है कि हर बच्चे को आप हथियार दो, हर बच्चे को हथियार दो। क्या आपको हिंदुस्तानी निजाम के डिपार्टमेंट पर नहीं भरोसा है? हमने तो कभी अपने बच्चों के मुतालिक इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन वो तमाम चीजें खुल करके इस बात को कर रहे हैं, कह रहे हैं। सिर्फ इसलिए मेरे अजीजों के अलर्ट रखना चाहती है हर कौम अपने बच्चों को। आज मैं भी आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, उठो, वो करना हश्र ना होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना अपनी चाल चल गया, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल चुका। मेरे अजीजों, अपने बच्चों और अपने जवानों के वक्त को बर्बाद होने से बचाओ, इनके जाया होने से बचाओ। बहुत सारी तारीखें हमारे पास मौजूद हैं। हिंदुस्तान में आकर के तारीख रकम करने वाले सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा। बहराइच शरीफ के एक बुजुर्ग हैं जिनके मुतालिक आला हजरत फरमाते हैं हर 50 मिनट पर वहां पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की हाजिरी देखी गई है। ये वो सालार मसूद गाजी जो ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान आए थे और अपनी जिंदगी कुर्बान की और शहादत पाया, और आज तक लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज उनकी अजमत मौजूद है। जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? उनकी शहादत के वक्त उनकी उम्र 18 साल की थी। 18 साल की उम्र, और सुल्तान सालार मसूद गाजी सुल्तानुल औलिया बन गए। शहीदों में बड़ा आला मकाम है। इसलिए जवानी अगर किसी ने अपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखता है। मौला करीम हम सबको हमारी जिंदगी को बेकार होने से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।